Good morning class. Today we will continue our lecture on polynomial. Okay. In the previous class we studied that what is polynomial, what are the type of polynomials and degree of polynomials. In this class we will study about zeros of polynomial. Zeros of polynomials. Okay. Today we will study about zeros of polynomial. Okay. My dear students, we all know that polynomial can be classified into linear polynomial, quadratic polynomial, cubic polynomial. Okay. Suppose I take a polynomial in which the variable is x, okay, and this polynomial is equal to 5x square, 5x cube minus 2x square, okay, plus 3x minus 2. This is the standard forms of cubic polynomial. Why this polynomial is known as cubic polynomial? Because the degree of this polynomial is 3, and when the degree of any polynomial is 3, that type of polynomial is called cubic polynomials. Okay. My dear student, in this polynomials, x is variable, means the value of px will depend on x. If we change the value of x, then the value of polynomial px will get changed. Means अगर हम इस polynomial में x के वैल्यू को चेंज कर दें, क्या होगा? px का जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा. ठीक है. अब एक केस लेते हैं, लेट x is equal to 0. Okay. When x is equal to 0, p0 is equal to 5 into 0, that is 0, minus 2 into 0, that is 0, 3 into 0, that is 0, minus 2. This will gives you, the result will be minus 2. Okay. Means at p, the value of this polynomial px will be minus 2 when the value of x is equal to 0. Okay. What I say? The value of this polynomial px is equal to minus 2 when the value of x is 0. Okay. Now what I said that if you change the value of x, the value of this polynomial automatically gets changed. Let us see. In the first case, x is equal to 0 and the value of polynomial px is equal to minus 2. Now let x is equal to 1. Okay. Now let x is equal to 1. Then p1 is equal to what? p1 is equal to 5 into 1 का क्यूब. हम लोग क्या करेंगे? जो x वेरिएबल है, हमने x को क्या माना? 1. तो इस एक्सप्रेशन में जहां पे x की वैल्यू है वहां पे क्या पुट करेंगे? 1 पुट करेंगे. यहां पे क्या होगा? 5 इंटू 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2. क्या किया? जहां x था वहां क्या लिखा हमने? वहां पे 1 x को रिप्लेस कर दिया. किससे? 1 से. क्यों? क्योंकि हमें इस पॉलिनोमियल px का वैल्यू
कहां पे फाइंड करना था, 1 पे, ठीक है। अब देखो ये क्या होगा, 5 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2, ओके। 5 इससे 2 गया, दैट इज 3, 3 प्लस 3 6, 6 माइनस 2 दैट इज 4, ओके। मींस जब इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 0 था तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आया था, -2। जब इसी पॉलिनोमियल में x का वैल्यू 0 से चेंज होके 1 हो गया, क्या हुआ, 0 था यहां पे क्या हुआ, 1 हो गया। द वैल्यू ऑफ px विल आल्सो चेंज एंड इट बिकम 4। क्या हुआ, अगर x पाने क्या था 0, तो मेरा पॉलिनोमियल px का वैल्यू क्या आया, -2। दूसरा केस में क्या हुआ बेटा, x का वैल्यू 0 से चेंज होकर 1 हो गया, क्या हुआ, 0 से चेंज होकर 1 हो गया। पॉलिनोमियल का वैल्यू -2 से चेंज होकर 4 हो गया। तो यहां से क्या पता चलता है, इफ वी चेंज द वैल्यू ऑफ द x, मींस if we change the value of variable, the value of that polynomial will automatically gets changed। क्या मैंने बोला, if we change the value of variable, then the value of that polynomial will automatically gets changed। We will see on the boards that when x is equal to 0, then the value of that polynomial is -2. When x is equal to 1, the value of polynomial is 4. Let x is equal to -1. At x is equal to -1, what is the value of this polynomial, px? We can write px is equal to 5 into, क्या करेंगे, जहां जहां पे x है वहां पे क्या, x को रिप्लेस करेंगे किससे, -1 से। क्या होगा, 5 इंटू -1 का क्यूब -2 इंटू x का स्क्वायर, क्या होगा, -1 का स्क्वायर, प्लस 3 इंटू x है, x का क्या होगा, -1 -2। कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा। हमने क्या किया, जहां जहां पे x था, x को हमने क्या किया, रिप्लेस कर दिया, किससे, x को हमने क्या किया बेटा, रिप्लेस कर दिया, किससे, -1 से, और चेक किया कि हमारा px का वैल्यू क्या आता है, कहां पे, -1 पे। क्या आएगा, -1 का क्यूब क्या होता है, माइनस होता है, -1 होगा, क्या होगा, -5, -1 का क्यूब क्या होगा बेटा, -1 इंटू 5 -5, फिर क्या होगा, -1 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 इंटू 2 क्या होगा, -2, ठीक है। इसके बाद 3 इंटू -1 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस -3 -2, दिस विल बी द रिजल्ट। अब ये है क्या, -5 -2 -3 एंड -2, ओके। इसको एवलुएट करो, देखो कितना आता है, ठीक है। क्या आएगा, -7 -12 आया कि नहीं आएगा। हमने क्या देखा, जब हमने क्या किया, x की वैल्यू चेंज किया, तो x के चेंज होने के साथ साथ जो हमारा px का वैल्यू है वो चेंज हो जा रहा है। क्या हो रहा है बेटा, मेरा जो px का वैल्यू है वो क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है, ठीक है। अब एक और इसका एग्जांपल देखो। अब मान लो लेट x इक्वल टू t, क्या करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे किससे, t से, तो t बराबर क्या हो जाएगा, x क्यूब की जगह क्या लिखेंगे, t का क्यूब, 5t का क्यूब माइनस x स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, t का स्क्वायर माइनस 2t का स्क्वायर, 3x की जगह पे क्या लिखेंगे, प्लस 3 इंटू टी, -2 है, -2, तो क्या होगा, ये इसका वैल्यू होगा। मींस जब x इक्वल टू t हो गया
तो यहाँ पे क्या हुआ, एक अनदर वेरिएबल आ गया t, मींस अब इसका जो pt है वो किस पे डिपेंड करेगा, ऑन द वैल्यू ऑफ t। ओके, किस पे डिपेंड करेगा, ऑन द वैल्यू ऑफ t। ठीक है, यहां तक किसी कोई डाउट? अब देखो, एक पॉलिनोमियल लेते हैं, ठीक है, तो यही याद रखना कि जब भी क्या हो, किसी पॉलिनोमियल का वैल्यू पूछा जाए, ठीक है, तो हमेशा याद रखना हम लोग क्या करेंगे, जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछा जाएगा क्या करेंगे, वैल्यू, उस वेरिएबल को हम लोग रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट टर्म से। वेरिएबल विल गेट्स replaced by constant term, constant number or constant number or another variable। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, x इज ए वेरिएबल, जब हम लोग क्या करेंगे, उस वेरिएबल को अगर हम लोग कांस्टेंट नंबर से रिप्लेस किए, जैसे पिछले पॉलिनोमियल में मेरा एक एक्सप्रेशन था जिसमें क्या था, x एक वेरिएबल था, हमने क्या किया, x को रिप्लेस किया, या एक t जो कि एक अनदर वेरिएबल था। ठीक है, सिमिलरली x को रिप्लेस किया 0 से, x को रिप्लेस किया 1 से, सिमिलरली x को रिप्लेस किया 2 से। ठीक है, और क्या हुआ था, द वैल्यू ऑफ दैट पॉलिनोमियल विल गेट्स चेंज्ड, उस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो रहा था बेटा, चेंज हो जा रहा था। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक और पॉलिनोमियल लेते हैं, px इज इक्वल टू x माइनस 1। ये क्या है, x माइनस 1 इज ए पॉलिनोमियल, व्हिच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, द डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 1, that means this is linear polynomial, okay, and there is 2 terms, that means this is binomial, okay, binomial polynomial with degree 1, okay, that means binomial polynomial, और ये कैसा होगा, linear polynomial होगा। ठीक है, linear polynomial का डिग्री क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब देखो ये एक पॉलिनोमियल है, यहां पे सर्च करते हैं p0 पे, ये क्या हो जाएगा, -1 x0 -1, p इक्वल टू 1 पे क्या होगा, 1 - 1 इक्वल टू 0। अब देखो, अभी तक जो मैंने कर रहा था, एक्चुअली हम यहीं पे पहुंचना चाह रहे थे। इस चीज पे देखो, जब हम बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इसका मतलब क्या होता है, वेरिएबल का वो वैल्यू, वेरिएबल का वह वैल्यू जिस वैल्यू के ऊपर क्या हो, जो हमारा पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 के बराबर हो जाए। मैंने क्या बोला, यहां पे देखो, जब हम वेरिएबल 0 रखे तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या था, -1 था ना। जब मैं इस पॉलिनोमियल के वैल्यू, इस वेरिएबल के वैल्यू को चेंज कर दिया, मतलब 0 से 1 चला गया, तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो गया, 0। ठीक है, तो याद रखना, जिस वेरिएबल के वैल्यू के ऊपर, जिस वेरिएबल के वैल्यू के ऊपर पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए, उस वेरिएबल को हम लोग बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं बेटा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, मींस मैंने क्या बोला, फिर से सुनो, यही मेन पॉइंट है, जिस वेरिएबल के, क्या बोला मैंने, जिस वेरिएबल के वैल्यू के ऊपर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 के बराबर हो जाए, उस पॉलिनोमियल क्या बोलेंगे हम लोग, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है,
समझ में आया? नहीं है? मतलब इस पॉलिनोमियल में जब हम लोग x इज इक्वल टू, x क्या था? वेरिएबल था। जब हम लोग x इज इक्वल टू 1 रखे तो इस पॉलिनोमियल px का वैल्यू क्या हो गया? जीरोस। तो मैंने क्या बोला? जिस वेरिएबल के ऊपर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो गया? जीरो हो गया, उस वेरिएबल को बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहां पे 1 क्या है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि जब हम लोग 1 रखेंगे तो ये वैल्यू क्या देगा? जीरो के बराबर देगा। ठीक है? हमेशा याद रखना, जिस वेरिएबल के वैल्यू के ऊपर उस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाए, उस वेरिएबल को हम लोग क्या बोलते हैं? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। एंड फॉर दिस केस 1 is the zeros of polynomial, because when we put x is equal to 1, the value of this polynomial is equal to 0. ठीक है? When we put x is equal to 1, then at x is equal to 1, the value of this polynomial is equal to 0. That's why 1 is called the zero of this polynomial. What is 1 is called the zeros of this polynomial. ठीक है? समझ में आया? अब इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है? अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। ठीक है? ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है। ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है? एक सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल है। ठीक है? क्या बेटा? सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल। ठीक है? और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 3 टर्म्स है। फर्स्ट टर्म्स, सेकेंड टर्म्स, थर्ड टर्म्स। इसका मतलब क्या है? ये ट्राइनोमियल है। ये पॉलिनोमियल कैसा बेटा? ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल है। ठीक है? अब इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या है? 2। और जो हाईएस्ट पावर होता है किसी भी पॉलिनोमियल का, उसको क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है? 2। ठीक है? क्या डिग्री? 2। जब किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री 2 हो, उस पॉलिनोमियल क्या बोलते हैं हम लोग? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिंगल वेरिएबल, ट्राइनोमियल एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है? अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे? x को 0 पुट करो, तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा? 2 into 0 0, 2 into 0 0, -4, दिस इज इक्वल टू -4। हुआ कि नहीं होगा? मींस at x is equal to 0, the value of this polynomial is -4. Now we will change the variable. What we get? The value of this polynomial will also gets changed. For example, when x is equal to 1, the value of this polynomial is equal to 2 into x का स्क्वायर मींस 1 का स्क्वायर। हम लोग क्या कर रहे हैं? x को 1 से रिप्लेस कर रहे हैं, प्लस 2 into x को क्या करेंगे? 1 -4। ये क्या होगा? 2 प्लस 2 -4, दिस इज इक्वल टू 0। 0 होगा ना? और मैंने कुछ देर पहले आपको क्या बताया था कि वेरिएबल के जिस वैल्यू के ऊपर पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए, उसी वेरिएबल को हम लोग क्या बोलते हैं? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस केस में for polynomial px is equal to 2x squared plus 2x minus 4, this is a polynomial, and the 1 is the zeros of this polynomial, because when we put x in this polynomial, when we put x is equal to 1 in this polynomial, the value of this polynomial will be 0, and we know that the value of variable at which the value of that polynomial is equal to 0 is known as zeros of polynomial. ठीक है?
ये क्या हो गया, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, अब इसको डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे डिफिनेशन इसका? सिंपली क्या लिखो, लेट अल्फा इज कॉल्ड zeros of a polynomials. Let alpha is called zeros of a polynomial if p alpha is equal to 0. if p alpha is equal to 0, ठीक है, मतलब अल्फा को हम लोग क्या बोलेंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे कब, जब p अल्फा क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। तो इस केस के लिए क्या होगा, जो अल्फा का वैल्यू होगा वही क्या कहलाता है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या कहलाएगा बेटा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, क्या कहलाता है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये क्या चलेगा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब एक देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, लेट एक हम लोग पॉलिनोमियल ले रहे हैं p x इक्वल टू x माइनस 2। ठीक है, p x इक्वल टू x माइनस 2 या प्लस 2 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, x प्लस 2। ये सबसे पहले देखो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है, सबसे पहले देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 2। कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने बेटा, 2 टर्म्स। कौन कौन, एक x वाला और एक 2। ये कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा, बाइनोमियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बाइनोमियल कहलाएगा। क्यों, जहां पे बाय मींस क्या होता है, 2। जिस पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स हो उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें वेरिएबल के ऊपर मैक्सिमम पावर क्या है, वेरिएबल है क्या, x, और x का मैक्सिमम पावर क्या है, 1। क्योंकि 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 रेज पावर x, 2 इंटू x रेज पावर 0। तो यहां पे क्या है, x जो वेरिएबल है उसका पावर क्या है, 0। बट यहां पे क्या है, x का पावर 1 है। मींस इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, 1। तो ये कैसा पॉलिनोमियल होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अब देखो हमको क्या करना है, चेक करना है, क्या चेक करना है कि किस x के वैल्यू पर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। क्या हो जाए, x के किस वैल्यू पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हीट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे। क्या करेंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड। हम लोग क्या करेंगे, x को वैल्यू को चेंज करेंगे और देखते जाएंगे कि x के किस वैल्यू पे हमारा इस px पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 के बराबर हो जाए। सबसे पहले x को 0 रखो, तो p0 क्या होगा, 2। अब क्या करते हैं, क्या ये 0 हुआ, नहीं, हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ वेरिएबल को चेंज कर देंगे और चेंज करके क्या लाएंगे, 1। अब क्या करते हैं, x को 1 से रिप्लेस करो, +2। क्या होगा बेटा, 3। क्या 0 हो रहा है, नहीं। फिर x इक्वल टू 2 रखते हैं। अब क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल में x को रिप्लेस करेंगे किससे, 2 से। ये क्या हो जाएगा, 2 + 2 4। हम लोग क्या देख रहे हैं, व्हाट डू वी ऑब्जर्व, इफ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, the value of this polynomial will also increase. Means when the variable is equal to 0, the value of this polynomial is 2. When the value of variable is 1, then the value of this polynomial is equal to 3. When
the value of this polynomial, this variable is 2, the value of this polynomial is 4. Means we increase the value of variable, the value of the polynomial will also gets increase. तो क्या इस केस में कभी भी जीरो आने की संभावना है? 2 के बाद क्या होगा? 3, 4, फिर क्या सकता है? 5 आएगा, 6 आएगा, इस तरह क्या होगा? ये वैल्यू इंक्रीज करते जाएगा। कब? जब हम लोग वेरिएबल के वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं। इसका मतलब हमको आगे ना चल के पीछे चलना चाहिए। अब देखते हैं, मैंने 0 ले लिया, अब 1 नहीं लेके हम लोग क्या करेंगे? p -1 लेते हैं। अब देखते हैं p -1। देखो, जब हम लोग x के वैल्यू को इंक्रीज कर रहे थे तो हम लोग क्या देख रहे थे? 0 से दूर जा रहे थे, लेकिन हमको जाना कहां था? 0 के ऊपर जाना था। तो हम क्या करेंगे? x के वैल्यू को डिक्रीज कर देंगे। क्यों? क्योंकि वी वांट टू गो क्लोज टू द x। जब मैं x बोलता हूं तो आप ये मत, आप अपने एक्स गर्लफ्रेंड को याद मत कर लेना, ठीक है? x का मतलब क्या होता है? जब भी मैं x बोलता हूं, वेरिएबल, आई एम टॉकिंग अबाउट वेरिएबल, नॉट अबाउट योर एक्स गर्लफ्रेंड। आई एम टॉकिंग अबाउट वेरिएबल, ठीक है? अब पढ़ाई लिखाई छोड़ के आप लोग एक्स गर्लफ्रेंड को मत याद करने लगना, ठीक है? प्रेजेंट में रहना, ठीक है? जब हम x बोलते हैं हम लोग किसकी बात करते हैं? वेरिएबल की। आपकी गर्लफ्रेंड की बात नहीं करता हूं, ठीक है? याद रखना इस चीज को, ठीक है? हम क्या देख रहे थे? जब हम लोग वेरिएबल के वैल्यू को इंक्रीज कर रहे थे, हम लोग 0 से दूर जा रहे थे, लेकिन हमको जाना कहां है? 0 के ऊपर जाना है। इसका मतलब क्या है? वी हैव टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। क्यों? क्योंकि हमको 0 के ऊपर जाना है। इसलिए हमने क्या किया? 2 ना लेके क्या किया? 0 से डिक्रीज कर दिया और क्या लिया? -1। अब देखिए -1 में क्या होता है? x को रिप्लेस करेंगे -1 से, यहां पे क्या होगा? -1 + 2, ये क्या होगा? 1। अब देखो, जब p = 0 था तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या था? 2 था, ये x से दूर था। जब हमने क्या किया? वेरिएबल की वैल्यू को डिक्रीज करके p क्या रखा? -1, तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो गया? 1। मतलब क्या? पिछले के कंपेयर में हम लोग 0 के क्लोज जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं बेटा? 0 के क्लोज जा रहे हैं, ठीक है? क्या मैं और डिक्रीज कर दूं? अगर मैं और डिक्रीज कर दूं किसका? वेरिएबल के वैल्यू को, मे बी हम लोग 0 के ऊपर चले जाएं। लेट p = -2। अब हम क्या करेंगे? इस केस में x को रिप्लेस करेंगे किससे? x को रिप्लेस करेंगे, ठीक है? ऑलवेज रिप्लेस योर x विथ योर प्रेजेंट और योर फ्यूचर। ओके, अगर जीवन में खुश रहना है तो अपने x को अपने फ्यूचर से रिप्लेस कर दो, ठीक है? हमेशा हैप्पी रहोगे, ठीक है? तो मैंने क्या किया? 0 से पहले -1 रखा, फिर क्या किया? इस वेरिएबल को और डिक्रीज कर दिया और कितना आया? -2। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा? इस x को, इस वेरिएबल को रिप्लेस करूंगा किससे? -2 से। मेरा रिजल्ट क्या आएगा? -2 + 2। बेटा ये क्या होता है? 0। हमको क्या चाहिए था? 0। द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 0। हमको यही रिजल्ट तो चाहिए था। यहां पे क्या हुआ? इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो गया? 0 के बराबर हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? एक बार अच्छे से देखो, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हुआ बेटा? 0 के बराबर हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? 0 के बराबर हो गया पॉलिनोमियल का वैल्यू, हुआ ना? तो याद रखना, जब जिस x के वैल्यू पे, जिस वेरिएबल के वैल्यू पे उस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए, इसी को क्या बोलते हैं? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो फॉर px = x + 2, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? -2। क्या होगा बेटा? -2। समझ में आई? अब देखो, क्या मैं हर एक केस में हिट एंड ट्रायल मेथड करूंगा? ये हिट एंड ट्रायल मेथड क्या है?
लॉन्ग मेथड है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हर एक केस में यही हीट एंड ट्रायल मेथड को अपनाएंगे? अपना पाएंगे नहीं, क्योंकि ये क्या टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। हीट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग मेथड होता है, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक नए मेथड को अप्लाई करेंगे, और ऑलवेज रिमेंबर कि ये जो मेथड होगा कौन से पॉलिनोमियल के लिए एप्लीकेबल होगा, बाइनोमियल पॉलिनोमियल के लिए। किस पॉलिनोमियल के लिए, बाइनोमियल पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है। अब देखो, अभी मैंने किससे कैसे फाइंड किया, हीट एंड ट्रायल से। अब मैं क्या करता हूं, याद रखना ये जो मेथड सिर्फ और सिर्फ बाइनोमियल के लिए यूज करना, ठीक है। क्या करेंगे, मैंने क्या बोला कि x वेरिएबल है इस पॉलिनोमियल में, हमें क्या फाइंड करना था, इसी x को फाइंड करना था ना, हाँ, इसी x को फाइंड करना था ना, करना था। तो हम क्या करेंगे, इस px पॉलिनोमियल को ही जीरो से इक्वेट कर देते हैं। मान लेते हैं कि ये px पॉलिनोमियल जीरो है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब px पॉलिनोमियल जीरो है, क्या x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो है, x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो है। अब इसको एवेलुएट करो, क्या होगा, x है, इसको जीरो की इधर लाओ, क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस टू, x इज इक्वल टू माइनस टू। और मैंने थोड़ी पहले क्या देखा था, ये x के माइनस टू वैल्यू पर ही इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या था, जीरो था। मतलब जो माइनस टू है, क्या है इसका, माइनस टू इस पॉलिनोमियल का क्या था, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल था। तो क्या मैं इस मेथड से जब पूछे अगर बाइनोमियल पॉलिनोमियल हो तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट उस पॉलिनोमियल को इक्वेट कर दो, किसके साथ, जीरो के साथ, और फाइंड करो क्या उसमें x का वैल्यू क्या आता, वेरिएबल का वैल्यू क्या आता, जो वेरिएबल का वैल्यू होगा वही जीरोस होगा इस पॉलिनोमियल का। समझ में आया? हैव यू एनी प्रॉब्लम? ओके, shall we move further? This method is based for binomial only. Which type of polynomial this method is based? This method is based for binomial only. Okay? यार मजा आ रहा है ना? ठीक है? अब देखो, एक पॉलिनोमियल, एक एग्जांपल है, क्या बोलता है, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। किस पॉलिनोमियल का? पॉलिनोमियल में क्या है, 2x प्लस 1। सबसे पहले चेक करो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा है, दो टर्म है, टू टर्म मींस कौन सा पॉलिनोमियल है बेटा, बाइनोमियल है। मैंने क्या कहा था, अगर बाइनोमियल में क्या करो, उस पॉलिनोमियल को इक्वेट कर दो, किसके साथ, जीरो के साथ। क्या मैं लिख सकता हूं px इज इक्वल टू जीरो, यहां से क्या होगा, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो होगा ना। अब क्या होगा, 2x 1 को इधर लाओ, क्या हो जाएगा, माइनस 1। x क्या होगा, इधर मल्टीप्लाई में है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 2, डिवाइड में चला जाएगा। तो x का वैल्यू क्या होगा, माइनस 1/2, मींस माइनस 1/2 इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। विच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, द पॉलिनोमियल 2x प्लस 1, ठीक है। माइनस 1/2 क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरोस है, चेक कर लेते हैं, p माइनस 1/2, x के जगह पे माइनस 1/2 रख के देखो क्या होगा, 2 इंटू माइनस 1/2 प्लस 1, क्या हो जाएगा, 2 कटेगा, माइनस 1 प्लस 1 बराबर 0, दोनों बगल से सेटिस्फाई कर दिया। मींस इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है बेटा, माइनस 1/2। समझ में आया, किसी कोई दिक्कत? देखो यहां से एक रिजल्ट को हम लोग फाइंड आउट करते हैं, क्या रिजल्ट है, यहां से एक रिजल्ट को फाइंड करते हैं, ठीक है। एक क्या लेंगे, एक जनरल फॉर्म्स ऑफ बाइनोमियल लेंगे, क्या लेंगे, जनरल फॉर्म्स ऑफ
बाइनोमियल लेंगे। माय डियर स्टूडेंट, पिछले क्लास में मैं आपको क्या बताया था कि जनरल फॉर्म्स किसी बाइनोमियल में क्या होता है, px इक्वल टू ax प्लस b। क्या होता है, ax प्लस b। ठीक है, क्या होता है, ax प्लस b, where x is the variable and a and b are the constant। क्या होता है, a b क्या है, कांस्टेंट है, x क्या है, वेरिएबल है। तो मतलब ये क्या है, ax प्लस b इज द जनरल फॉर्म्स ऑफ ए बाइनोमियल। ठीक, और बाइनोमियल में कितने टर्म होते हैं, टू टर्म्स, ax एक टर्म हुआ, b क्या है, दूसरा टर्म, मींस ये क्या है, एक बाइनोमियल है। तो जब आपको बाइनोमियल होगा, बाइनोमियल के केस में अगर आपको जीरो फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, सिंपली उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जीरो से इक्वेट कर दो। क्या करेंगे, px इक्वल टू जीरो, दैट मींस ax प्लस b इक्वल टू जीरो। अब देखो, जब हम पढ़ रहे थे जनरल फॉर्म्स ऑफ बाइनोमियल सिंगल वेरिएबल के लिए, वहां पे ax प्लस b को पढ़े थे, तो एक कंडीशन क्या था मेरा, a इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड b इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर a जीरो के बराबर हो जाए तो ये पॉलिनोमियल क्या होगा, मोनोमियल हो जाएगा। अगर b इक्वल टू जीरो हो जाए तो ये पॉलिनोमियल क्या होगा, मोनोमियल हो जाएगा। हमेशा याद रखना कि इस जनरल फॉर्म्स में ऑफ बाइनोमियल में ax प्लस b क्या एक जनरल फॉर्म्स ऑफ बाइनोमियल है, where a is not equal to 0 and b is not equal to 0. If a is equal to 0 or b is equal to 0, then it is not b, then it is not called to be a binomial. तब उसको हम क्या बोलेंगे, तब ये बाइनोमियल कन्वर्ट हो जाएगा मोनोमियल में। हमेशा याद रखना इस चीज को। अब क्या करते हैं, क्या यहां पे कंडीशन लिख लो, a is not equal to 0। ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या मैं लिख सकता हूं, ax प्लस b इक्वल टू जीरो, यहां से क्या होगा, ax इक्वल टू माइनस b, यहां से x क्या होगा, माइनस b अपॉन a। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दैट फॉर बाइनोमियल जीरोस किस पॉइंट पे होगा, माइनस b अपॉन a। क्या होगा, माइनस b अपॉन a। वहां पे b क्या है, कांस्टेंट टर्म है पॉलिनोमियल का, a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल है। क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर कोई बाइनोमियल है, तो उसका जीरोस कहां पे होगा, माइनस b अपॉन a। क्या होगा बेटा, माइनस b अपॉन a, जहां पे b क्या है, कांस्टेंट टर्म है उस बाइनोमियल में। उस बाइनोमियल में जो कांस्टेंट टर्म होगा वो क्या है, b है। a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल है। यहां पे देखो x क्या है बेटा, वेरिएबल है, और x का कोएफिशिएंट क्या है, a। तो हमेशा याद रखना, इस पॉलिनोमियल का जीरोस कहां पे होगा, जीरो कहां पे होगा, माइनस b बाई a के ऊपर। किस पे होगा, माइनस b बाई a के ऊपर। चेक कर लो, p माइनस b अपॉन a, a इंटू x के जब क्या लिखोगे, माइनस b अपॉन a प्लस b है, a कट गया, क्या होगा, माइनस b प्लस b क्या होगा, जीरो के बराबर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना, हमेशा याद रखना, जब भी बाइनोमियल हो तो उसका जीरो कहां पे होगा, माइनस b अपॉन a पे, जहां पे b क्या है, उस बाइनोमियल का कांस्टेंट टर्म है, और a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल करके देखो, सपोज p x इक्वल टू 7x प्लस 2। क्या है, 7x प्लस 2 है। अब देखो मैंने क्या बोला, इसका x का वैल्यू किस पे, इसका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म माइनस के साथ क्या होगा, -2 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल क्या है, 7
तो इस पॉलिनोमियल का जीरोस कहां पे होगा? -2/7 पे। चेक कर लो, p -2/7, x के जगह पे क्या लिखेंगे? 7 इंटू एक्स की जगह पे -2/7 प्लस 2 करो, 7 7 कटा, क्या हुआ? -2 प्लस 2 बराबर 0। सिंपली कैलकुलेट कर लिए। जब भी कोई बाइनोमियल हो, जब भी क्या हो? बाइनोमियल हो, उसका जीरोस कहां पे होगा बेटा? जीरोस होगा -b/a पे, जहां पे b क्या है? कांस्टेंट टर्म ऑफ पॉलिनोमियल है, बाइनोमियल है। a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल है। अब एक और देख लेते हैं, जैसे देख लो px इज इक्वल टू 4x² प्लस 16। ठीक है, अब मैंने क्या बोला? आपसे पूछा जाए कि इस बाइनोमियल का, इस पॉलिनोमियल का जीरोस क्या होगा, आप क्या करोगे? सिंपली क्या करोगे? x क्या है? बाइनोमियल क्या होता है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? x का वो वैल्यू जिस वैल्यू के ऊपर उस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाए। सिंपली हमने क्या बताया? अगर आपको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है, क्या करो? कांस्टेंट टर्म माइनस लिखो, कांस्टेंट टर्म लिखो, कांस्टेंट टर्म 16 है यहां पे लिखे, डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ क्या लिखे? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, क्या लिखे? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। ठीक है, लिखे ना। अब देखिए क्या इसका आंसर क्या होगा? -16/4 क्या होगा? -4 होगा। क्या इसका आंसर -4 होगा? नहीं। अब चेक क्या करना है? बाइनोमियल था तो इसको इस टर्म में लिख दिए। अब देखो ये लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है? माय डियर स्टूडेंट, ये कैसा पॉलिनोमियल है? पावर क्या है? मैक्सिमम पावर 2। जब किसी पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर 2 हो, उस पॉलिनोमियल क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब कोई पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक हो, हम लोग क्या करते हैं? उसका जीरो किस पे होगा? रूट अंडर -b क्या था? कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, क्या था? a। क्या होगा? रूट अंडर -b/a। क्या करेंगे? इसके ऊपर हम लोग रूट लगा देंगे, तो आंसर क्या होगा बेटा? आंसर क्या होगा? -2। अब देखो क्या लगा देंगे? रूट लगा देंगे, आंसर क्या होगा? -2। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? -2, ठीक है, प्लस माइनस प्लस -2 होगा। ठीक है, तो इसी तरह क्या करना है? रूट को लगा देना है। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग क्या करते हैं? मोनोमियल के केस में उसका हम लोग क्या लगाते हैं बेटा? उसका हम लोग जीरो, उसका हम लोग क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। किस चीज को? जीरोस को। ठीक है, तो इसी बेस पे हम लोग इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना? एक्सरसाइज 2.2 का सारा क्वेश्चन डील करना। और एक चीज और याद रखना, जो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता है उसी को हम लोग बोलते हैं रूट ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? रूट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोस ऑफ polynomials is also called root of that polynomial। ठीक है, हमेशा याद रखना, जो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? रूट ऑफ दैट पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? रूट ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3। क्या बोला? एक
पॉलिनोमियल गिवन है और आपसे बोला गया है कि उस पॉलिनोमियल का रूट फाइंड करो। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? फाइंड द zeros of the polynomial 5x minus 4x square plus 3 at पहला ऑप्शन x इक्वल टू 0। सॉरी, क्वेश्चन क्या? फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 0। दूसरा क्या बोल रहा है? एट x इक्वल टू -1। तीसरा क्या बोला बेटा? एट x इक्वल टू 2। हमको क्या करना है? एक पॉलिनोमियल गिवन है क्या? px इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब क्या करना है? इसमें वेरिएबल का वैल्यू दिया हुआ है और इस वैल्यू के ऊपर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा ये बताना है। जब मेरा वेरिएबल का वैल्यू 0 हो जाए तब इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा? p0। अब क्या करेंगे? x को रिप्लेस करेंगे। x क्या वेरिएबल है? x को रिप्लेस करेंगे किससे? 0 से। क्या होगा? 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। ये टर्म क्या हुआ? 0। ये भी क्या हुआ? 0। तो p0 इक्वल टू क्या हुआ? 3। मतलब when x इक्वल टू 0 the value of this polynomial is 3। when x इक्वल टू 0 the value of this polynomial is 3। दूसरा क्या करना है? चेक करना है कि x इक्वल टू -1 पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा। आप क्या करोगे? x को रिप्लेस करोगे -1 से और जो वैल्यू आएगा वही उस पॉलिनोमियल का वैल्यू कहलाएगा। x इक्वल टू 2 है। क्या करेंगे? इस पॉलिनोमियल में x को रिप्लेस करेंगे 2 के साथ और जो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू होगा वही क्या कहलाएगा? वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। कर लेना घर पे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 आप कर लीजिएगा घर पे, ठीक है बेटा? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड p0, p1 and p2 for each of the following polynomials। फाइंड p0, p1 and p2 for each of the पॉलिनोमियल्स। अब देखो अलग अलग पॉलिनोमियल दिया हुआ है और p0 के ऊपर, p1 के ऊपर और p2 के ऊपर आपको उसको वैल्यू पूछ रहा है। तो px इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? y स्क्वायर, सॉरी py, y दिया हुआ, ठीक है? py इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। एक ये पॉलिनोमियल है। दूसरा क्या है? pt इज इक्वल टू 2t प्लस 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब, ठीक है? और पॉलिनोमियल गिवन है। तीसरा क्या गिवन है? px इज इक्वल टू x क्यूब। चौथा क्या गिवन है? px इज इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 1। आपको क्या करना है? एक 4 पॉलिनोमियल गिवन है और इस चारों पॉलिनोमियल का वैल्यू पूछ रहा है, एक बार 0 पे, 1 पे, 2 पे। अब पहला क्वेश्चन मैं बता देता हूं, ठीक है? एट p इक्वल टू 0 मींस y को रिप्लेस करेंगे किससे? 0 से। इसका वैल्यू क्या होगा? 0 स्क्वायर 0, 0 क्या होगा? 1। क्या होगा? जब वेरिएबल 0 हो जाए तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा? 1। इसी तरह सारे के लिए निकालो बराबर। अब क्या करोगे? 1 के लिए चेक करो वेरिएबल, यहां क्या करो? y को रिप्लेस करोगे किससे? 1 से, कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है? उसी तरह 2 से यहां क्या करो? y को रिप्लेस करोगे 2 से, फिर इसका वैल्यू आएगा। इसी तरह
यहां भी करोगे, फिर करोगे इससे इससे, ऐसे ही करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम। अब क्या दिया हुआ, चेक करना है। चेक करना क्या है कि जो वेरिएबल दिया हुआ है क्या वो वेरिएबल उस पॉलिनोमियल का जीरोस है कि नहीं है। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, px इज इक्वल टू 3x प्लस 1। ठीक है, और क्या बोला, एट x इज इक्वल टू -1/3। You have to check that x is equal to -1/3 is the zeros of this polynomial or not। इसके लिए क्या करना है, p x को रिप्लेस करेंगे -1/3 से, किससे रिप्लेस करेंगे बेटा, x is replaced by -1/3, क्या होगा 3 into x की जगह क्या लिखो -1/3 प्लस 1, क्या होगा 3 3 कटे क्या होगा -1 प्लस 1 क्या होगा 0। दैट मींस x is equal to -1/3 is the zeros of polynomial px is equal to 3x plus 1 because at x is equal to -1/3 the value of this polynomial is equal to 0। That means that this variable x is the zeros of this polynomial। इसी तरह क्या करना है, इसमें 8 क्वेश्चन है। ठीक है, 3 के अंदर 3 में क्या है 8 क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, सब में चेक करना है कि जो x का वैल्यू दिया हुआ है उसके ऊपर वो 0 होता है कि नहीं होता है। ठीक है, अब देखो चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब क्या है, बहुत सारे पॉलिनोमियल, कितना, एक पॉलिनोमियल गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है कि उस पॉलिनोमियल का जीरोस क्या होगा। ठीक है, और याद रखना आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 में जो एक पॉलिनोमियल गिवन है वो सारा पॉलिनोमियल किसका है, बाइनोमियल का है। किसका है, बाइनोमियल का है। हम लोग जानते हैं कि बाइनोमियल का किसका, बाइनोमियल का जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। क्या होता है बेटा, माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल इज द जीरोस ऑफ बाइनोमियल। किसका होता है, बाइनोमियल का। और क्वेश्चन नंबर 4 में एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 4 में जो 8 क्वेश्चन है सब किसका एग्जांपल है, बाइनोमियल का। हर जगह क्या करोगे, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल करोगे, आपको क्या होगा, वही उसका क्या कहलाएगा, जीरोस कहलाएगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 क्या दिया हुआ, px is equal to x plus 5। क्या दिया हुआ बेटा, px is equal to x plus 5। Here x is the variable and there are two terms, that's why this is the example of binomial। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, क्या फाइंड करना है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। मींस ये x का वो वैल्यू जिसके ऊपर इस पॉलिनोमियल क्या हो जाए, पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 के बराबर हो जाए। इसके लिए क्या करेंगे, सिंपली क्या करना है, x इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस, इस पॉलिनोमियल में 2 टर्म है जिसमें एक में वेरिएबल है, दूसरा क्या बेटा कांस्टेंट है। ये 5 क्या है, कांस्टेंट है। क्या लिखेंगे, माइनस कांस्टेंट मतलब 5 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x, और x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -5 क्या है, इज द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब चेक कर लो, p -5 भरो क्या हो जाएगा, -5 प्लस 5 क्या होगा, 0। मतलब क्या, x is equal to -5 is the zeros of this polynomial because at x is equal to -5 the value of this polynomial is equal to 0। समझ में आया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी तरह यहां पे सारे क्वेश्चन पकड़ोगे। ठीक है,
दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, px इज इक्वल टू 3x। क्या बोला बेटा, px इज इक्वल टू 3x। ठीक है, अब यहां पे देखो कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे, क्या ये बाइनोमियल है, नहीं है, नहीं है ना, सिंपली क्या करो 3x इज इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 0/3 होगा, और 0/3 क्या होता रहेगा 0, तो क्या होगा इसका 0, क्या होगा इसका 3x का क्या होगा 0, क्या होगा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, इसी तरह आप सारा क्वेश्चन इसका कर लेना। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। आपको क्या करना है, आज एक्सरसाइज नंबर 2.2, ओके, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 2.2 करके आपको अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना है। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा आप डाउट में पूछ सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिमाइंडर थ्योरम को। क्या पढ़ेंगे, रिमाइंडर थ्योरम को। ठीक है, मतलब कि पॉलिनोमियल में हम लोग किस तरह रिमाइंडर को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ओके क्लास, आई होप यू ऑल एंजॉय माय क्लास। ओके, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।